من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ صاد کے یہ 5ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی کائنات کو پیدا کیا اور وہی اس کی تدبیر کر رہا ہے۔ اس کائنات کا خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے اور فرمانروا بھی وہ ہے، یعنی اسی کی فرمانروائی ہے۔ اس کائنات میں کوئی چیز چھوٹی ہے یا بڑی، جاندار ہے یا بے جان، سب اس کے ضابطوں کی پابند ہے، اور انسان کو ان مخلوقات میں سب سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی خاطر کائنات کی ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے، تو توجہ دلائی ہے پھر انہی باتوں کی طرف جو سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ قل انما انا منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، دو ٹوک یہ بات ان کے سامنے آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، یعنی میری حیثیت صرف اتنی ہے کہ اپنے رب کے پیغام کو میں تم تک پہنچا دوں بلا کم و کاست، اور سب سے پہلے میں خود اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرنے والا ہوں۔ میں اپنے رب کے پیغام کو اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں کہ زبردستی تم سے منواؤں۔ تم مان لو گے ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو تمہاری مرضی ہے، خود اس کا انجام دیکھ لو گے۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ واحد اور قہار کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، یعنی یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا الہ ہے، اور یہ کائنات خود اس بات پر گواہ ہے، اس حقیقت پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس پر کائنات کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے۔ اور جیسے کہ فرمایا ایک اور مقام پر کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو اس میں ایک فساد برپا ہو جاتا۔ یہ کائنات تمہاری آنکھوں کے سامنے جتنی پرسکون اور پرامن چلی جا رہی ہے، ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہی ہے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو یہ ایسے کام نہیں کر سکتی تھی، یہ کائنات چل نہیں سکتی تھی۔ اور پھر یہ کہ اللہ ہی واحد ہے، یکتا ہے اور سب پر غالب ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے اور اس کے ضابطوں کی پابند ہے۔ لہذا تمہارے لیے بھی اس نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے جو میں تمہارے آگے پیش کر رہا ہوں، تم اسے قبول کر لو گے تو تم اپنے مقصد حیات کو پورا کر لو گے، اور اگر اس پیغام کو قبول نہیں کرتے جو اللہ نے میرے ذریعے سے بھیجا ہے تو پھر تم اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ گے، اپنے مقصد سے سرکشی اختیار کرو گے۔ رب السماوات والارض، وہی آسمان اور زمین کا رب ہے، یعنی مالک ہے اور فرما روا ہے، یہ دونوں مفہوم ہے رب کے اندر۔ وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، مطلب ہے اس پوری کائنات کا وہی یکتا رب ہے، العزیز الغفار، اور وہ سب پر غالب ہے اور درگزر کرنے والا بھی ہے، یعنی اگر مخلوق سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ سزا دینے میں غالب نہیں بلکہ معاف کرنے کی طرف وہ توجہ رکھتا ہے، یعنی اگر کوئی اپنی غلطی پر
नादिम होकर उससे माफ़ी मांग ले, अपनी इस्लाह कर ले, तो वो ज़रूर सज़ा नहीं देता, बल्कि माफ़ करने की तरफ माइल है और इसी को वो पसंद करता है। कुल हुवा नबउन अज़ीम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें वो तो बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर, यानी अल्लाह का यकता होना। शुरू में आयत 5 में ये बात गुजरी थी। मुनकरीन ने ये जवाब में कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इसने तमाम माबूदों की बजाय एक माबूद बना लिया है, ये कैसी अजीब बात है। इसको बड़ा अजीब उन्होंने करार दिया था। तो भाई हकीकत यही है, पैगंबर ने तो हकीकत बयान की है और वो हक़ के अलावा कोई चीज़ बयान नहीं करता। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कुल हुवा नबउन अज़ीम, वो तो एक बहुत बड़ी ख़बर है। अंतुम अनहु मोरिज़ून, और तुम उससे मुँह मोड़ रहे हो, तुम उससे इराज़ बरत रहे हो, यानी तुम इतनी बड़ी हकीकत को कबूल करने के लिए आमादा नहीं हो। मा कान लिया मिन इल्मिन, और मुझे कोई इल्म नहीं उस चीज़ का, बिल मलाइल आला, यानी मलाए आला के बारे में, उन फरिश्तों के बारे में, इज़ यख्तसिमून, कि जब वहाँ झगड़ा हो रहा था, जब वो झगड़ रहे थे। ये इशारा है उस तरफ जिधर अगली आयत में अल्लाह ताला ने बयान किया है। यानी अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों के सामने ये ज़िक्र किया था कि मैं एक इंसान बनाने वाला हूँ मिट्टी के पुतले से, तो फरिश्तों ने इस खदशे का इजहार किया था कि अल्लाह ताला तो ऐसी मखलूक पैदा करने वाला है कि जो ज़मीन में खून बहाएगी, आपस में फितना फसाद करेगी। तो अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई की थी, उनके सामने इंसान की तख्लीक का मकसद बयान किया था। तो उस तरफ इशारा है ये। इन यूहा इलैया इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, कि जब मेरी तरफ तो सिर्फ ये वही की गई है, यानी मेरी तरफ ये हकीकत वाज़ेह कर दी गई है, इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, कि मैं तो साफ साफ ख़बरदार कर देने वाला हूँ। यानी मैं अल्लाह के पैगाम को बिला कमोकास इंसानों तक पहुँचा देना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। इज़ काल रब्बुका लिल मलाइकति, याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था, इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, कि मैं मट्टी से यानी खुश्क गारे से एक बशर पैदा करने वाला हूँ। फ़ैज़ा सवैतुहु, बस जब मैं उसे दुरुस्त कर लूँ, जब मैं उसे पूरा यानी मुकम्मल कर लूँ, व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, और मैं उसमें अपनी जब रूह फूँक दूँ, फ़क़अू लहू साजिदीन, तो तुम सब के सब उसके आगे सजदारेज़ हो जाना, तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, बस तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, अल्लाह के हुक्म की पैरवी की, अल्लाह ने जैसे हुक्म दिया था उसको बजा लाए वो, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। याद रहे कि इब्लीस फरिश्तों में से नहीं था, इब्लीस का ताल्लुक़ जिन्नात में से था, लेकिन बहरहाल वो इस हुक्म में शामिल था। इस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया, घमंड किया, वकान मिनल काफिरीन, और काफिरों में से हो गया, इनकार करने वालों में से हो गया वो। काला या इब्लीस, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्लीस, मा मना आका, किस चीज़ ने तुझे रोका, अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदिया, कि तू ने सजदा नहीं किया उसे जिसे मैंने अपने हाथ से बनाया, तू कैसे इससे बाज रहा। अस्तकबरता, तूने तकब्बुर किया, अम कुंता मिनल आलीन, या तू कोई बड़ी चीज़ों में, बड़े हस्तियों में शामिल हो गया। यानी तूने क्या किया ये कि इस हुक्म की तूने तामील नहीं की। काल अना खैर मिनहु, तो उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन, मुझे तूने आग से पैदा किया, व खलक़तहु मिन तीन, और इसे तूने गारे से पैदा किया, तो मैं इस लिहाज से इससे बरतर हूँ, मैं भला इसे कैसे सजदा करता। तो ये बात सजदा करने की जो थी वो अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर थी। असल चीज़ अल्लाह की इताअत और बंदगी है। घटिया या बरतर ये फ़ैसला करना इंसान का काम नहीं है कि वह अपने तौर पर फ़ैसला करके और अपने लिए कोई अमल मुतय्यन करे। काला फ़ख़रुज मिनहा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा निकल जा यहाँ से।
फ़इन्नक रजीम, यकीनन तू मरदूद है, यानी उनमें जो रद्द कर देने वाले हैं, जो रद्द हो जाने वाले हैं उनमें से है। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और तुझ पर मेरी तरफ से लानत है उस दिन तक के लिए जो कि यौमिद्दीन, जज़ा का दिन है, यानी बदले का दिन है। उस दिन तक के लिए तुझ पर मेरी तरफ से लानत है, यानी मेरी रहमत से तो ये दूरी है। काल रब्बी फ़अन्ज़िरनी, तो उसने कहा कि मेरे परवरदिगार तू मुझे मोहलत दे दे, इला यौम युबअसून, उस दिन तक के लिए जब दोबारा उठाए जाएंगे, यानी उस वक्त तक तू मुझे ज़िंदगी अता कर। काला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, ठीक है तू मोहलत पाने वालों में से है। इला यौमिल वक्तिल मालूम, उस दिन तक के लिए जिसका वक्त मालूम है, यानी तयशुदा है वो वक्त, वो दिन जब दोबारा लोग उठाए जाएंगे, लेकिन उस दिन का वक्त अल्लाह ही को मालूम है, किसी को मालूम नहीं। काला फ़ब इज़्ज़ती का, तो इब्लीस ने कहा कि तेरी इज़्ज़त की कसम, अल्लाह ताला से उसकी इज़्ज़त की कसम खाकर कहा लअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं इन सब को भटकाऊँगा, इन सब को बहकाऊँगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे उन बंदों के जो मुखलिस होंगे, जो तुझ पर खालिस ईमान रखने वाले होंगे, जो किसी बहकाए में नहीं आएंगे, उनके अलावा सब को मैं बहकाऊँगा। काला फल हक़, अल्लाह ताला ने फरमाया बस हक़, वल हक़ वकील अकूल, और मैं हक़ ही बयान करता हूँ, यानी यही हक़ है कि सब दोबारा पैदा होंगे, सब रोज़ जज़ा के दिन मेरे सामने हाजिर होंगे, और मैं हक़ ही बात बयान करता हूँ। ला अमला अन्ना जहन्नमा मिनका, कि मैं जहन्नुम को भर दूँगा तुझसे, व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, और उन सब से जो तेरी पैरवी करने वाले हैं सबको जहन्नुम में डाल दूँगा, जहन्नुम को तुम्हें लोगों से भरूँगा। कुल मा असलुकुम अलैहि मिन अजर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें लोगों से कि मैं इस काम पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, यानी मैं जो ज़िम्मेदारी अदा कर रहा हूँ, इस ज़िम्मेदारी को अदा करने में मैं किसी और से अजर का तालिब नहीं हूँ, बल्कि वमा अना मिनल मुतकल्लिफ़ीन, और ना ही मैं कोई तकल्लुफ़ करने वालों में से हूँ, यानी मैं अपने रब की हर हाल में बंदगी करने वाला हूँ। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये तो महज एक नसीहत है तमाम जहानों के लिए, यानी जो पैगाम मैं पहुँचा रहा हूँ ये सब जहान वालों के लिए एक नसीहत है। वला तालमुन्ना नबहू बादहीन, और कुछ मुद्दत के बाद हर एक को इस खबर के बारे में मालूम हो जाएगा, तुम सब जान लोगे इस खबर के बारे में। यानी दो पहलू हैं इस बात के, एक तो ये कि कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरेगा तुम देखोगे कि हक़ ही गालिब आ गया, यही हक़ गालिब आएगा। और वो लोग जो ज़िंदा थे उन्होंने अपनी आँखों से देख लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई दावत न सिर्फ अरब बल्कि अजम पर भी गालिब आ गई थी। और इसके अलावा इस तरफ भी इशारा है कि कोई ज़्यादा देर नहीं किसी शख्स की मौत आने में, जैसे ही किसी पर मौत वारिद होगी वो फ़ौरन आखिरत को देख लेगा कि आखिरत है या नहीं है, और जिसे तुम झुटला रहे हो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो, वो ज़िंदगी भी यकीनी है जो इस ज़िंदगी के बाद आने वाली है। लिहाजा इस मोहलत से फ़ायदा उठाओ, एक एक पल इसका बड़ा कीमती है कि जब मौत वारिद हो जाती है, वक्त आ जाता है, तो एक लम्हे की भी न ताख़ीर होती है न तक़दीम होती है। लिहाजा फ़ायदा उठाओ इस मोहलत से, और इस दावत से जो मैं पेश कर रहा हूँ यही राह निजात है, इसी में कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें भी इस हकीकत को समझने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन।
اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.